यमुना तीर वनचारे ISKCON Bibli founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada ki Jaya Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Astottara Satasi Srimad His Divine Grace of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज वृंदावन धाम की जय नवदीपमय प्रधाम की जय जगन्नाथ परिधाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावित भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all assembled devotees, glories to Shri Shri Guru and Shri Guru.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Bhagavad Gita as it is, chapter number 2 and text number 31. This is contents of the Gita summarized. Swadharmam api cha aviksha na vikampitum arhasi dharmyat hi yuddhat shreyah anyat kshatriyasya na vidyate swadharmapi chaveksha na vikampiturmarhasi dharmat viyuddhayat shreyah anyat kshatriyasya na vidyate swadharmamapi chaveksha na vikampitum arhasi dharmat viyuddhayat shreyah anyat kshatriyasya na vidyate swadharmamapi chaveksha na vikampitum arhasi dharmat viyuddhayat shreyah anyat kshatriyasya na vidyate. Swadharma, one's own religious principles. Api, also. Cha, indeed. Aveksha, considering. Na, never. Vikampitum, to hesitate. Arhasi, you deserve. Dharmat, for religious principles. He, indeed, yuddhat, then fighting. Shreyah, better engagement. Anyat, any other. Kshatriyasya, for the Kshatriya, na, does not. Vidyate, exist. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. So there is no need for hesitation. Out of the 4 orders of social administration, and second order for the matter of good administration is called Kshatriya. Kshat means hurt. One who gives protection from the harm is called Kshatriya. Trayate means to give protection. So Kshatriyas are trained for killing in the forest. A Kshatriya should go into the forest and challenge a tiger face to face and fight with the tiger with his sword. When the tiger was killed, it would be offered the royal order of cremation. This system has been followed even up to the present day by the Kshatriya kings of Jaipur state. The Kshatriyas are specially trained for challenging and killing because religious violence is sometimes necessary factor.
Therefore, Kshatriyas are never meant for accepting directly the order of sannyas or renunciation. Non-violence in politics may be a diplomacy, but it is never a factor for principle. In religious laws, the books, it is stated, Ahaveshu mitho anyonyam jigamansato mahikshiti yudhamannaha paramam shaktya swargam yanti aparan mukha yaggeshu pashavo brahman hanyante satatam dvijaye संस्कृताः किल मंत्राश्च ते अपि स्वर्गम अवाप्नुवम्. In the battlefield, a king of proud Kshatriya, while fighting another king envious of him, is eligible for achieving the heavenly planets after death. As the Brahmanas also attain the heavenly planet after sacrificing animal in the sacrificial fire. Therefore, killing on the battlefield on the religious principle and killing animals in the sacrificial fire are not at all considered to be the act of violence, because everyone is benefited by the religious principles involved. The animal sacrificed gets a human life immediately without undergoing gradual evolutionary process from one form to another. And the Kshatriyas killed in battlefield also attain the heavenly planets, as do the Brahmanas who attain them by offering sacrifice. There are two kinds of swadharmas, specific duties. As long as one is not liberated, one has to perform the duties of his particular body according to the religious principles in order to achieve liberation. When one is liberated, one's swadharma, specific duty, becomes spiritual and not in the material body concept. In the bodily conception of life, there are specific duties for the Brahmanas and Kshatriyas respectively, and such duties are unavoidable. That is swadharma ordained by the Lord. And this will be clarified in the 4th chapter. On the bodily plane, swadharma is called varnashrama dharma, or man's stepping stone for spiritual understanding. Human civilization, beginning from the stage of varnashrama dharma, or specific duties in terms of the specific modes of nature of the body obtained. Discharging one's specific duty in any field of action in accordance with the orders of the higher authorities serves to elevate one to the higher status of life. So what is the second aspect of swadharma? One is in bodily conception of life, that is varnashrama dharma. But after one gets liberated, what is the specific swadharma? It changes. In liberation, there is no bodily conception of life. So what should be the swadharma? Yes, pure devotional service is the swadharma. That is Jiva's. Jivera Swarup Her Nitya Krishna Das Krishna Tatashta Shakti Bheda Abheda Prakash. So, while in bodily conception of life, execute varnashrama dharma. This will make our life perfect. Even in Bhagavatam it is said that Savai punsam paro dharmo yato bhakti radokshaje ahetuki apratihata yayatma suprasidati.
the best occupation of all humanity is to bhakti, adokshaja, to the transcendental Lord, who is beyond our sense perception. It's called adokshaja. And such devotional service should be ahituki and apratihata. Ahituki means causeless. There is no material cause for it, and there is no material gain for it. Everything belongs to Krishna. So that is called adokshaja, means transcendental Lord. By executing such service, yayatma suprasidati, and the soul will be completely in harmony with its maker. That is Paramatma. Otherwise, however, in our best occupation, the varnashrama dharma charvata purushena parma puman Vishnu aradyate sapantha iti Vaishnava. Varnashrama dharma charvata. We have to follow the varnashrama dharma according to our varna and ashram. In Kali Yuga, such divisions are completely, not important, because those who are in mode of goodness, they must be Brahman. Those who are in mode of passion must be Kshatriya. Those who are in mixed mode of passion and ignorance are the Vaishyas. And those who are in mode of ignorance, they are called Shudras. So, according to Guna Karma, the four divisions and the four orders of spiritual, material as well as spiritual, both have been given. But we cannot stick to one way or other. One way or other. One way means you can't follow Varnashram Dharma all your life. Therefore, Srimad Bhagavatam is take that the best perfection of human form of life is to offer, according to Varnashram Dharma, in the service of Krishna. All their Vajjite. Attah Pumdi Dvijasreshta Varnashrama Vibhagasha Dharmasya Anutishthasya Samsiddhim Haritosha. The principle is combined in Kali Yuga. Try to perform all the activities according to your varna and ashram. But you will say, in Kali Yuga everybody is a Shudra. Everybody ends up in serving some other just for the sake of stomach. So where is the Varnashram Dharma? Yes, most of the population will be like that in Kali Yuga, because Varnashram system is broken in Kali Yuga. But yet, the principle is not broken. The principle is not broken. And therefore, stay in Varna and Ashram as much as possible and offer all your services for the satisfaction of Lord Vishnu. When you eat, you should think, is Lord Vishnu satisfied? No, I think of myself. When I eat, I think of my own selfishness. That is not fair. So prasadam is to be accepted as the mercy of the Lord and not abuse it as much as you require and become respectful to prasadam. We have to teach everything. If somebody is not respectful to prasadam, takes home and then throw in the garbage, then it is not fair. One should not take. Srila Prabhupada conducted all these, practices in the temple.
in such a subtle way that nobody could notice that all these principles of execution of devotional service, even while following the Varnashram Dharma, have been maintained. So like that, it is very important to understand Swadharma. Now you may say, what is Swa? My body is also called Swa. My mind is also called Swa. Swa means the ownership. I own the body, even the temporary, but it is my body. So I have to maintain my body, so my Swadharma is to earn something in reciprocation rather than I remain a parasite, on somebody. Everybody has to chip in their own services and nobody is a master. So like that, we are told to follow Swadharma. So if you consider even body is Swa, there is nothing wrong, but it is temporary. In old age, it will be difficult to consume so much food, and you will be very careful not to waste it, not to abuse it, So like that, because body does not need, and Krishna made it so much, sensitive, that if you overindulge, either you will end up in diarrhea or indigestion and go hyperacidity or have diabetes like me or like that. So, it's a built-in mechanism, but yet those who do not understand the self and the teachings, they can't make any excuse out of it. They cannot make an excuse. This is very important and a sensitive, very sensitive matter. Most of the world's problems will be over. Bed Jawan. So, if somebody is afraid of executing the Swadharma, even for body, for protection of the body, just Arjuna was, very much afflicted mentally because he was considering something, even though benevolent in the eyes of others, but it was wrong and wrongly placed at the time of fratricidal war. Hindi. Again. अर्जुन का ये काफी समस्या उसने अपने मन में पैदा कर दी. तो भगवान तो जानते हैं. भगवान ने कहा कि तू अपने स्वधर्म से बिल्कुल विचलित ना हो. तो क्षत्रिय है, तो उसे जबरदस्ती भी लड़ना पड़ेगा. तू लड़ना नहीं चाहता है, तो स्वधर्म छोड़कर तू घबरा रहा है. विकम्पिन्तु अर्हसि. विकम्पन यानी कि वो उसके पसीने छूट रहे हैं. कई लोगों के सामने लड़ना है, ये है, वो है. बेहतर न लड़े तो ठीक है, लेकिन वो स्वधर्म को नहीं जानता. वो जबरदस्ती से लड़ने आए तो क्या करेगा? हथियार तो उठाना ही पड़ेगा. सही ना? तो स्वधर्म दो प्रकार के बताए हैं. स्व यानी शरीर का भी धर्म होता है और आत्मा का भी धर्म होता है. लेकिन शरीर जब भौतिक माया से छूटता है और मुक्त होता है, मुक्ति मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति. मुक्ति ऐसी चीज है जो अपने आप को अपने मूल स्वरूप में ही, ये शरीर होते हुए भी अपने मूल स्वरूप में अपना ध्यान बना रहे. मूल स्वरूप क्या है?
जीवीर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। मूल स्वरूप भगवान का दासत्व का है कि भगवान का अंश भगवान की सेवा ही करेगा और तो क्या करेगा। हाँ, तो वो स्वधर्म तो अंतिम स्वधर्म बना है, लेकिन शरीर भी तो बीच में फंसा है। हाँ, हम शरीर का तिरस्कार कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर खलु धर्म साधन, शरीर धर्म वहन करने का साधन है, इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं बताया। तो हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, यदि इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाते तो मानसिक तृप्ति अपने शरीर द्वारा कराते हैं। हाँ, तो वो ठीक नहीं। हाँ, वो स्वधर्म नहीं, वो शरीर का धर्म ही जो काम चला है, तो उसके लिए भी हमें सजाग तो रहना है। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन न हो भाई। हाँ, पेट का तो कुछ उपाय ही करना पड़ेगा। हाँ, कि भूखे पेट से भजन भी नहीं हो पाता, तो पहले प्रसादन की व्यवस्था होनी ही चाहिए। भगवान को अर्पित करके करो, बाद में खाओ तो कोई पाप नहीं हमें लगता। हाँ, बिना भगवान को ऑफर किए तो भक्ति में बाधा डालेगा। हाँ, तो इसलिए आत्मा का स्वधर्म, हाँ, और शरीर का स्वधर्म एक ही मनुष्य जीवन में दोनों भव पार करने के लिए, यानी कि शरीर की मुक्ति के लिए और भगवत धाम जाने के लिए, दोनों में सक्षम है। नहीं तो अन्य युगों में शारीरिक धर्म पर ही शुद्धि होती थी। पर भागवत में कहा कि सभी अपने वर्ण और आश्रम में रहकर जो सूचित कर्म है वो भगवान की प्रीति के लिए करें, भगवान के संतोष के लिए करें। संसिद्धि हरितोषण, संसिद्धि, सिद्धि यानी परफेक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, संसिद्धि इन समग्र सिद्धि, सर्व प्रकार की का परफेक्शन, भगवान की भक्ति, अपने शरीर और अपने जो सारे धर्म थे वो भगवान की प्रीति के लिए करने को ही कहा है। अपनी इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों की प्रीति के लिए करने को नहीं कहा है। हाँ, वो तो परेशानी का मामला हो जाएगा। अर्जुन को भौतिक प्रीति नहीं थी, लेकिन मानसिक प्रीति तो थी अपने बंधुओं से, चाहे वो चचेरे भाई क्यों ना हो। वो समझता था कि यदि हम जीत जाएंगे और ये मर जाएंगे तो हम कौन सी खुशी मनाएंगे। जिनके साथ हमें सुख चैन से रहना था वो तो मर गए सारे, हमने ही मार दिए, तो मारने की क्या आवश्यकता है। वो अहिंसक बनना चाहता है। और भगवान कहते हैं कि तू अपने स्वधर्म छोड़कर घबरा रहा है, यानी कि ये छोड़ना तो नहीं चाहिए, न चाहते हुए भी तुझे लड़ना पड़ेगा, न चाहते हुए भी। तो हमें हर एक चीजों में ये जो भगवत गीता में भगवान का सारा मंतव्य है, सारे विचार, वो समझने की आवश्यकता होती है। और हमारे जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष आते हैं और उसको सहन करना पड़ेगा और उसको विजयी बनना पड़ेगा। यानी कि हमारे सामने जो जो समस्या है उससे लड़ने की आवश्यकता होती है और भगवान की भक्ति करते करते लड़ सकते हैं। तो वो यहाँ बताया है कि एक पक्ष नहीं है, सिर्फ चलो तो बेहतर है, यहाँ तो बहुत झगड़ा इत्यादि होता है, चलो बाहर चले और अब थोड़ी माला करते रहेंगे और तो क्या। यानी कि झगड़े का सामना नहीं करना चाहता है, उसे डर लगकर वो भाग खड़ा होता है।
तो उसे फायदा नहीं। स्वधर्म में तो यहाँ भगवान कहते हैं कि तुझे स्वधर्म त्याग करके विकम्पन नहीं होना है। स्वधर्म पी न चावेक्ष न विकम्पित तुम अर्हसि। हाँ, considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you other than fighting on the religious principles. And there should not be any need for hesitation. ये स्वधर्म पालन करने हेजिटेशन क्यों कर रहा है, जबकि आवश्यकता ही नहीं। तो ये अलग अलग ख्यालों में आदमी ये स्पष्ट बातें होते फिर भी उलझे रहता है और भगवान की बात समझता नहीं। मैं प्रभुपाद जी के लेटर को पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद जी इतना स्पष्ट थाईलैंड के लोगों के लिए लिखते हैं कि हम अपना जीवन भगवान की आज्ञा का पालन करके हम आसानी से पूर्णता प्राप्त कराने वाला बना सकते हैं। यही हमारा प्रचार है। भगवान के कानूनों का पालन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें भगवान की प्रीति है। भगवान यदि हमारे करे कराए ऊपर यदि प्रसन्न है तो मनुष्य जन्म सफल कहलाता है। हम सेवा करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन इस सेवा के पीछे हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या मेरी सेवा से भगवान प्रसन्न है? और तो उसका नाम तोरण कौन करेगा? क्या गुरु मेरी सेवा से, भगवान की सेवा से प्रसन्न है? यदि गुरु भी नहीं है तो क्या भक्त लोग मेरी सेवा से प्रसन्न है? तो ये नाप तोरण होता है। हाँ, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति का उद्गम तो गुरु की कृपा और भगवान श्री कृष्ण दोनों की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो ये गुरु की प्रसन्नता भक्तों की प्रसन्नता पर आधार है। भक्तों की प्रसन्नता यानी कि एक दो भक्त को राजी करो, दूसरों को मारो गोली, ये भक्तों की प्रसन्नता का विषय नहीं थी। ये तो पॉलिटिक्स का प्रश्न है। तो यहाँ लिखते हैं कि नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स में भी डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को हिंदी में मुत्सद्दीगिरी कहते हैं। मुत्सद पता नहीं है इसका मतलब क्या है, लेकिन मुत्सद जरा मध्यस्थ बुद्धि रखने वाला, न कोई भी समस्या से विचलित नहीं होता। दोनों पक्ष में गड़बड़ी है तो वो मध्यस्थी कर सकता है मुत्सद्दीगिरी में। मुत्सद्दीगिरी में यानी कि डिप्लोमेसी में वो मध्यस्थी कर सकता है। मध्यस्थी मीन्स he works like a middleman। जब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना है तो कहते कि मीडिएशन करो। कोई न्याय नहीं देना चाहता है, कोर्ट वाले भी कहेंगे हाँ जाओ पहले किसी को मध्यस्थी बनाकर प्रश्न को सुलझाओ, बाद में नहीं सुलझता है तो हमारे पास आना। हाँ, डिवोर्स केस में भी मध्यस्थी कराते हैं, क्योंकि ऐसा जजमेंट देना आसान नहीं है। और एक जज के सामने कितने सारे कोर्ट केसेस होते हैं, तो इनको भी असिस्टेंसी चाहिए। तो इसी तरह ये जब कोई
अहिंसा को पॉलिटिक्स में उपयोग करना चाहता है, वो उसका मध्यस्थी का साधन हो जाएगा। जैसे आज़ादी की मूवमेंट में गांधी उपवास करते थे, तो वो मर जाएगा यदि इसका कोई सुनता नहीं है तो भारी अपराध होता। तो ऐसे वैसे लोग समाधान करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स में भी डिप्लोमेसी, बट इट इज नेवर ए फैक्टर और प्रिंसिपल। ये कोई सिद्धांत नहीं है, कभी था ही नहीं। क्योंकि जो धर्मशास्त्र जो न्याय करता है उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि यदि युद्ध भूमि में कोई क्षत्रिय या राजा जो उसके साथ लड़ाई कर रहा है वो उसका ईर्ष्यालु ही तो होगा, नहीं तो लड़ता क्यों। तो यदि वो मरता है तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए लायक बनता है। भगवान भी कह देते हैं हतोवा भी स्वर्ग प्राप्ति, नहीं तो शिवो वहां भी भुंगते राज्यम, जिएगा और जीतेगा तो सारा राज्य को भोग, नहीं तो स्वर्ग प्राप्ति कर। तो क्षत्रिय के लिए तो हमेशा ऊर्ध्व गति ही बताई है, तो उससे डरने की क्या आवश्यकता है, उसका कोई अहित तो होगा नहीं, सही ना, उसका अहित तो होगा नहीं। तो जब कोई हमारे साथ पॉलिटिक्स खेलता है और आप सही हो तो उसे डरने की कोई बात नहीं। ऐसा तो आता है चला भी जाएगा। जब ब्राह्मण लोग भी अपने अपने निजी कर्तव्य करके स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं और उसमें ब्राह्मणों को यज्ञ करना पड़ता है और पशु की बलि भी चढ़ानी पड़ती है, लेकिन वो शास्त्र में उस समय सूचित, कलयुग के लिए सूचना नहीं है। वो तो त्रेता युग में यज्ञ में आहुति देनी पड़ती थी और उसमें नया शरीर प्राप्त कराना था। तो धर्म का यही सिद्धांत वहां भी होता है कि धर्म के लिए जब यज्ञ विधि में पशुओं की बलि होती थी तो पशुओं को ऊर्ध्वगति प्राप्त कराने के लिए, नया जीवन देने के लिए प्रयोजन हुआ करता था। तो इसीलिए ब्राह्मण को इसका कोई श्राप नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मण हमेशा ऊर्ध्वगति पाएगा क्योंकि धर्म का सिद्धांत में वो आया। लेकिन कलयुग में जब मना ही है, यज्ञ विधि ही मना है। लेकिन यदि हम लोग भी यज्ञ करते हैं दीक्षा के समय में और होम चढ़ाते हैं, लेकिन पशु बलि नहीं चढ़ाते, क्योंकि अश्वमेधम द्वावलंबम वर्ज्य है कलयुग में। तो जब क्षत्रिय मरता है तो अपने स्वधर्म में स्थिर रहकर यदि मरता है तो स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। तो तुझे डरने की क्या बात है, तेरी तो ऊर्ध्वगति होगी। तो
प्रभुपाद जी कहते हैं 2 प्रकार के स्वधर्म की बात यहाँ करते हैं। एक शारीरिक स्वधर्म होता है, दूसरा आध्यात्मिक स्वधर्म। तो शारीरिक स्वधर्म का पालन करना, यानी कि यदि हम आध्यात्मिक बनते हैं तो शरीर का तिरस्कार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो वर्ण व्यवस्था हरे कृष्ण बताई है, उसमें स्वधर्म के बारे में हमें निश्चिंत रहना चाहिए। जब हम अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्थिर रहकर भगवान की प्रीति के लिए हम यदि वो स्वधर्म पालन करते हैं तो वो पूर्णता प्राप्त करवाता है। तो सिर्फ खुद यदि जीतेगा, खुद यदि मरेगा, तो उसके लिए स्वधर्म सिर्फ शरीर के लिए ही लागू होता है। जब भक्तों के लिए शरीर की भी मुक्ति होती है और आत्मा ऐसे मुक्त होकर भगवान के निजी धाम में प्रवेश करेगा। दोबारा ये भौतिक संसार में यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम, वो प्राप्त करेगा। तो ये वर्ण व्यवस्था बनी है, लेकिन भक्ति में आए हुए अपने शारीरिक स्वधर्म भी भगवान की भक्ति में जोड़ाने का एक अनूठा प्रयास कृष्ण भावना में ही होता है, अन्य नहीं होता। तो किसी को कोई प्रश्न है? Yeah. You just mentioned, and I know that you're not supposed to waste prasad, but sometimes there's so much salt, sometimes people put so much spicy oil. When it's way too much, how do you eat that? कान में इतने लाउड से सुनाई देता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। एक दूसरी बात है, बोलो दोबारा। प्रसाद वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो प्रसाद में जब people put so much salt or spices, so much salt that you cannot, put in your mouth. Then what do you do? Still supposed to finish eating? उसमें भी तालीम की आवश्यकता होती है। लोग अपने मन गढ़ंत प्रसाद नहीं पा सकते, भगवान भी नहीं पा सकते। दो प्रकार की भावना उसमें भी आती है। वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए वही खिलाओ, लेकिन दाल चावल राइस जो अपने लिए बनाओ वो ऑफर नहीं करते हैं। हमारा लाला ये नहीं खाता। लेकिन 56 भोग बनाएंगे तब सब चौपट। माल में ज्यादातर इतनी भारी भारी पूरियां, मठड़ी, मिठाइयाँ सब में अनाज आता है, इतनी बनाते हैं। तो कौन खाएगा? लाला नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? लेकिन हर रोज नहीं। तो ऐसी भावना वाले में हैं। जितने बच्चे हैं उतने लड्डू गोपाल रखेंगे अपने होटल में कि ठाकुर जी ने हमें बच्चे दिए हैं, तो ठाकुर जी जैसा ही लालन पालन अपने बच्चों को करना चाहिए। तो वो 3 बच्चों के रूप में लड्डू गोपाल होते हैं, एक नहीं, 3 बच्चे घर में होते हैं। और उनको
माखन मिश्री खिलाओ, ये करो, हाँ। लेकिन आइसक्रीम नहीं ऑफर करेंगे। जब भगवान मानते हैं यद करो दशनाश, तो ये तो भावना पर, लेकिन मिश्र भावना है, शुद्ध भावना नहीं है। जब 56 भोग करते हैं, ए हलवा पूरी, वो ठाकुर जी को ही भोग चढ़ाते हैं, वही लड्डू गोपाल खाते हैं। भगवान जब मिट्टी भी खा सकते हैं तो हलवा पूरी क्यों नहीं खाओ? तो भगवान को अति प्रिय भोग जो है उसके पीछे तो बहुत बड़ा साइंस है, और राधा रानी की रसोई इसमें बहुत प्रख्यात है। लड्डू पूरी, सर पूरी, हाँ, रसावली कौन सी, हाँ, ये भज भगत वत्सल श्री गौर, कितनी सारी आइटम, हाँ, या हर रोज खाते हैं, हर रोज बोलना पड़ता है। तब भावना के साथ शुद्धता का भी तो प्रचार होना चाहिए। जब भगवान के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा नमक क्यों पड़ जाता है, या नमक भूल भी क्यों जाते हैं, हाँ? थोड़ा भी बनाओ लेकिन क्वालिटी वाला बनना चाहिए भगवान का भोग, हाँ? क्योंकि वो अपनी आंतरिक शुद्धि बताएगा कि हम कितने सचेत सावधान हैं, जो भगवान का भोग बनाने में हम भगवान की रुचि का ही तो ध्यान रखते हैं। ऐसे नहीं भगवान मैं ये कर दूं, ये खा लो, मैंने बनाया है आपके लिए। भगवान फरियाद करेंगे, सनातन तो एक बाटी में नमक भी नहीं डालता, ऐसी दशा थी। तब सनातन गोस्वामी ने टोना मारा कि आप सारे जगत के नायक हो, आप नमक की भी व्यवस्था नहीं कर पाते। नमक तो सस्ता, मैं कहाँ लेने जाऊं, मुझे तो जो देते हैं माधुकरी में, मैं अपना धर्म बनाकर आपको भोग लगाता हूँ, कोई मुझे नमक भी नहीं देता। तो मैंने जो दिया मांगना नहीं है, और हम दोनों आगे रखते हैं, देना है दे दे, देने वाले को ख्याल में रखना चाहिए। लेकिन आप जब भी हमसे कहते हैं तो आप व्यवस्था कर सकते हैं। मुझे तो मैं यदि नमक खरीदने जाऊं, ये करूं, तो पैसे तो कोई देता नहीं, माधुकरी नहीं, वो तो मेरे पेट के लिए देते, फिर मुझे मेरी जिम्मेदारी आपको पहले ऑफर करने की है। तो मुझे जो मिलता है मैं थोड़ा अलग से नमक देकर खाता हूँ और आपको नहीं देता। तो ऐसी तीव्रता वाली भक्ति होती है, ख्याल में रखना होता है। जब सिर्फ नमक की बात है तो मिर्ची मसाला और तेल, that is very bad. We must learn the art of cooking. उसमें मर्यादा वाला काम होता है। जमुना ने जो कुक बुक लिखी है वो मेडिटेशन बहुत बड़ा होता है। दूसरी किताबों में भी देख कर की होगी, फिर भी उसने बनाकर भी ट्राई की होगी। पिछले साल व्यास पूजा में वहाँ हमें
कुक बुक उन्होंने पब्लिश की, कुकिंग विद व्यास उसमें हार्डली 50-60 रेसिपी थी।